Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about Lotka-Volterra model in ecology. This model is very important model in ecology if you are preparing for exams like CSR, UGC NET or any other competitive exams. This is very important topic. So let's start with this topic. What is Lotka-Volterra model? Some ecologists or we can say scientists, they build one model to identify the outcome of competition. We can say if same geographical area it is occupied by two different species, then what will be the outcome of competition if the two species or both species they are fighting for the same resource. So this is called the Lotka-Volterra model. There are 2 points in Lotka-Volterra model. First of all, if this is one geographical area and this is the species 1 which is present in this geographical area and this is species 2. If two species they are fighting from the same resource, which can be food, which can be any type of space or any type of other resource, if they are fighting for the same resource, what will be the outcome of this competition? So that means the Lotka-Volterra model explain the interspecific competition, which is the competition between these different two species. Second, this model explain when this geographical area it is occupied by single species and the individuals of this single species they are fighting for the same resource. So what will be the outcome of these intra-specific competition? So with the help of Lotka-Volterra model, we can predict the outcomes of interspecific competition and intraspecific competition. So Lotka-Volterra model explain the outcome of competition between two species or between the individuals of same species on or over ecological time scale. So here the Lotka-Volterra equation is totally based upon the Verhulst-Pearl logistic growth equation. According to this equation, what is dn over dt is equal to r k minus n by k. What is dn over dt? dn over dt का मतलब है कि यहाँ पे n means number of individuals in particular species. Suppose here is species 1. So this explain how the population of species 1 is changing over time. And r का मतलब होता है intrinsic rate of natural increase. K का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी. अगर स्पीशीज 1 की बात कर रहे हैं तो स्पीशीज 1 की K1 हो गई कि स्पीशीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है. Now what is the carrying capacity? Suppose we have a class in which we have 40 chairs and in that class if 50 students enter, they are not able to sit in those chairs because the students they are much more than the carrying capacity of class. Carrying capacity of class is only 40 because there are 50 chairs present only. So this is called the carrying capacity. उसके बाद यहाँ पे k minus n means carrying capacity minus जो population individuals की है by carrying capacity. So ये जो equation है ये logistic growth equation है. अब ये जो equation है इसको इस तरीके से modify किया गया है कि इसके साथ हम जो है Lotka-Volterra equation को बना सकते हैं. तो Lotka-Volterra इक्वेशन अगर हम स्पीशीज 1 के लिए बात करें तो जो भी Lotka-Volterra इक्वेशन है, सबसे पहले जो लॉगिस्टिक इक्वेशन है ये एक स्पीशीज में ही उनके इंडिविजुअल्स में आपस में कितना कंपटीशन है इसको एक्सप्लेन करता है, विच इज कॉल्ड द इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन. बट विद द Lotka-Volterra मॉडल वी आर एबल टू फाइंड द इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन as well as the interspecific competition which is between the individuals of two species, and this is between the individuals of same species, that is species 1. So here is the Lotka-Volterra equation for species 1. It showed dn1 by dt is equal to r1 n1. This is multiplied by k1 minus n1 minus alpha 1 to n2 by k1. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अल्फा 1 2 है इसका मतलब है अल्फा का मतलब होता है कंपटीशन कोएफिशिएंट. So this is the competition coefficient, which means what is the effect of species 2 on species 1, or we can say on the growth of species 1. So this is called the competition coefficient. Similarly, Lotka-Volterra equation for the species 2 is this. और यहाँ पे जो R is intrinsic rate of natural increase, N1 N2 means population of species 1
N1 means population of species 1, here is N2 means population of species 2, then K1 and K2. K1 means carrying capacity of species 1 and K2 means carrying capacity of species 2. और यहाँ पे जो कंपटीशन कोफिशिएंट आएगा इसका मतलब है कि कितना इफेक्ट जो है यहाँ पे स्पीशीज 1 का पड़ रहा है ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज 2. दिस इज कॉल्ड द कंपटीशन coefficient. So here alpha 1 2 represent the competition coefficient which represent the effect of individuals of species 1 on the growth of species 2. That's why here the effect of species 2 on the growth of species 1, and here is the competition coefficient which indicate the effect of competition or effect of individuals of species 1 on the growth of species 2. So with the help of this Lotka-Volterra model, we are able to make the state space graphs. Now what is state space graph? This graph identify that how the size of population of each species increase or decrease, or we can say how the size of population of each species change when we start different combination of species abundance. So this is shown by the state space graph. Species 1 के लिए ये ग्राफ है और species 2 के लिए ये वाला ग्राफ है. सबसे पहले क्या है, ये जो ग्राफ है it is on x and y axis. So along the x axis is the number of individuals present in species 1 which are increasing in this way up to this area. This is called the carrying capacity. This is called maximum carrying capacity for species 1. और यहाँ पे जो इस साइड है ऑन दी वाई एक्सिस इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 विच आर इंक्रीजिंग, and this is the reason where the carrying capacity of 1 is totally occupied and competition coefficient of species 2 on species 1 means competition coefficient का क्या मतलब है कि जो सेकेंड स्पीशीज है इसका जो फर्स्ट स्पीशीज है इसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो जब यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ शो होगा तो यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन शो होती है. ये लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सपोज यहाँ पे क्या है, इस साइड जो स्पीशीज 1 है इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और कितनी बढ़ेगी, जब तक ये कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी. तो यहाँ पे ये जो एक्स लाइन है इसको इंटरसेक्ट करेगा. एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया. दूसरा क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं और जो पॉपुलेशन है ये स्पीशीज 2 की बढ़ रही है. और कब तक बढ़ेगी, जब तक कि जो स्पीशीज 1 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी तक ही बढ़ेगी, इससे आगे नहीं जाएगी. तो दूसरी इंटरसेक्शन लाइन यहाँ पे आती है. दोनों के बीच में हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं. ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है जीरो आइसोक्लाइन ऑफ स्पीशीज 1. इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पे इस पॉइंट पे शो होता है कि जो स्पीशीज 1 है इसकी ग्रोथ बिल्कुल जीरो है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द dN/dt इज इक्वल टू जीरो, मीन्स आइसोक्लाइन ऑफ स्पीशीज 1. और यहाँ पे क्या है, जो इस साइड अगर हम देखें तो जो स्पीशीज 1 है ये डिक्रीज हो रही है, और अगर हम इस साइड देखें तो इस साइड जो स्पीशीज 1 है ये इंक्रीज हो रही हैं, बिकॉज इस साइड क्या है, अभी इंडिविजुअल्स कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचे. तो जब तक कैरिंग कैपेसिटी रीच नहीं करते तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन जब एक बार कैरिंग कैपेसिटी तक ये आ गए तो पॉपुलेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. अब सिमिलरली ये जो दूसरा ग्राफ है ये स्पीशीज 2 के लिए है. यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पीशीज 2 ये जो हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं. कब तक इंक्रीज होंगे, जब तक कि इनकी कैरिंग कैपेसिटी फिल नहीं हो जाती. तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगी. दूसरा क्या है कि इसी में अब क्योंकि जो लोत्का-वोल्टेरा मॉडल है ये शो करता है कि दो स्पीशीज, अगर एक जियोग्राफिकल एरिया में स्पीशीज 1 है और स्पीशीज 2 है, तो अगर ये इनके पास जो रिसोर्सेज हैं ये तो लिमिटेड ही होते हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है अगर हम नॉर्मली भी देखें, तो दोनों के बीच में कंपटीशन तो ज़रूर होएगा. तो इसकी क्या आउटकम होगी. अब यहाँ पे क्या है कि इसी जगह पे जो है ये स्पीशीज 1 के भी इंडिविजुअल्स हैं और इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन कब तक बढ़ेगी, जब तक कि यहाँ पे K2 नहीं आ जाता, मीन्स कैरिंग कैपेसिटी जो स्पीशीज 2 की है ये पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती. तो यहाँ पे इसमें भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज कॉल्ड द जीरो आइसोक्लाइन ऑफ स्पीशीज 2. मीन्स हियर द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज 2 इज टोटली डिक्रीज्ड, और वी कैन से द growth of species 2 is 0, which is dN/dt is equal to 0.
और अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पे अभी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी फिल नहीं हुई, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन साइज है स्पीशीज 2 का, ये इंक्रीज होगा। और नीचे वाली साइड अगर हम इस साइड देखें, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जा रहा है। तो जब कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर इनकी ग्रोथ जाएगी तो इनका जो पॉपुलेशन साइज है ये डिक्रीज होगा। द लोथका-वोल्टेरा मॉडल शो डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। यहाँ पे जो ग्राफ है ये क्या शो करता है? First of all, this is the species 2 growth and this is the growth of species 1. So this is called the isocline of species 1 and this is called the isocline of species 2. It depicts the isocline of species 1 is above the isocline of species 2. तो यहाँ से ग्राफ से हमें शो हो रहा है कि जो species 1 है ये ज़्यादा competitive है और ये कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड करती है स्पीशीज 2 को। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 1। तो यहाँ पे इस साइड जो स्पीशीज 1 है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और दूसरी साइड क्या है कि जो स्पीशीज 2 है इसके इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं अंटिल दे रीच द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ K1। यहाँ पे जो स्पीशीज 2 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, मीन्स इस साइड जो K2 मीन्स यहाँ पे जो स्पीशीज 2 है इसके इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है इस साइड ये स्पीशीज 1 के इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं जब तक कि ये कैरिंग कैपेसिटी जो स्पीशीज 2 है की है इसको रीच नहीं कर लेते। सो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि जो K1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 2 इट इज ग्रेटर देन K2, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। सेकेंड क्या है कि जो K2 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 1 दिस इज ग्रेटर देन K1, इसको यहाँ पे लिख लिया। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, मींस यहाँ पे क्या है K2 कैरिंग कैपेसिटी है स्पीशीज 2 की, और यहाँ पे है कि इसका जो स्पीशीज 2 है इसका इफेक्ट क्या हो रहा है ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज 1। तो अगर हम इन दोनों को साथ लिखेंगे तो इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो कैरिंग कैपेसिटी जो स्पीशीज 1 की है ये बहुत ज़्यादा है देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 2, और जो स्पीशीज 2 का 1 के ऊपर इफेक्ट है ये भी बहुत कम है देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ K1। सेकेंडली यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, K1 जो है और इसका जो इफेक्ट है 2 के ऊपर, इसको हम साथ लिखेंगे और ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन शो करती है कि जो स्पीशीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी है और जो इसका इफेक्ट है ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज 2 ये बहुत ज़्यादा है देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ K2। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इक्वेशन शो करती है कि जो K1 है इसकी कम जो है कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और इसका जो इफेक्ट है जो ये कंपटीशन दे रही है इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 को ये भी बहुत ज़्यादा है। तो मीन्स जो स्पीशीज 1 है ये ज़्यादा कंपेटिटिव है और इसके इंडिविजुअल्स जो है इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। सो दैट्स वाई इसका आइसोक्लाइन जो है ये ऊपर की तरफ है और जो दूसरी है ये नीचे की तरफ है। सो यहाँ पे क्या है, स्पीशीज 1 इज स्ट्रॉन्ग इंट्रोस्पेसिफिक कंपेटिटर देन द स्पीशीज 2। So species 1 goes to carrying capacity K1 and it competitively exclude out species 2। अब दूसरा सिनेरियो अगर हम देखें, सो इस सिनेरियो में क्या है, यहाँ पे K1 की कैरिंग कैपेसिटी है और यहाँ पे K2 की कैरिंग कैपेसिटी है। मीन्स जो स्पीशीज 1 है इसकी ग्रोथ, इसका जो आइसोक्लाइन है इट इज बिलो द आइसोक्लाइन ऑफ स्पीशीज 2। तो इसका मतलब है कि जो स्पीशीज 2 है it reached the carrying capacity K2 and species 1 is competitively excluded by species 2। तो मीन्स यहाँ पे जो स्पीशीज 2 है ये ज़्यादा कंपेटिटिव है, ये स्पीशीज 1 को एक्सक्लूड आउट कर देगी विद द हेल्प ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके से आएगी कि जो K2 मीन्स कैरिंग कैपेसिटी 2 की है ये ज़्यादा है देन द K1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 2, ये इक्वेशन, और यहाँ पे जो है ये K2 अल्फा 2 1 जो है ये ज़्यादा है देन दी इट इज़ ग्रेटर देन दी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1। अगर हम इन इक्वेशंस को रीअरेंज करें तो सिमिलरली हम यही करेंगे कि जो 2 की कैरिंग कैपेसिटी है और इसका जो 1 के ऊपर इफेक्ट है इनको साथ ले आएंगे तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली जो ये वाली इक्वेशन है कि 1 की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है स्पीशीज 1 की और इसका स्पीशीज 2 पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इनको अगर हम साथ ले आएँ तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब ये इक्वेशन से क्या शो होता है कि यहाँ पे जो स्पीशीज 2 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका जो इफेक्ट है 1 के ऊपर ये भी बहुत ज़्यादा है देन दी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ K1। सेकेंडली जो K2 मीन्स जो स्पीशीज 2 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है
देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 1, और जो स्पीशीज 1 का इफेक्ट है स्पीशीज 2 पे ये भी बहुत कम है। सो इससे क्या शो होता है हमें कि यहाँ पे जो स्पीशीज 1 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी और इसका जो कंपटीशन इफेक्ट है स्पीशीज 2 पे ये दोनों ही बहुत कम है। सो हेयर स्पीशीज 2 इज मच मोर कंपैटिटिव देन द स्पीशीज 1, सो इट विल एक्सक्लूड आउट द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 1। सो यहाँ पे क्या है कि जो स्पीशीज 2 है इसकी ग्रोथ ज़्यादा है और दूसरी की कम है। उसके बाद जो सिनेरियो 3 है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। अब ये ग्राफ क्या शो करता है कि यहाँ पे जो है स्पीशीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी है और यहाँ पे है K1 अल्फा 1/2, और इस साइड जो है ये स्पीशीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी है और इस साइड जो है K2 बाय अल्फा 1 का जो 2 के ऊपर इफेक्ट है। नाउ अगर हम यहाँ पे इक्वेशंस लिखें तो जो K1 अल्फा 1/2 है इट इज ग्रेटर देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 2, तो ये इक्वेशन इस तरीके से आएगी। अगर हम सेकेंडली देखें तो यहाँ पे क्या है, जो K2 अल्फा 1/2 इट इज ग्रेटर देन दी K1, तो यहाँ पे K1 से ये ज्यादा है। तो अगर हम इस जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करें जो जैसे हम पहले करते थे तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो K1 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है K2 से, और जो K2 है इसका जो मीन्स यहाँ पे स्पीशीज 2 है इसका स्पीशीज 1 के ऊपर इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये शो करती है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है स्पीशीज 2 की ये बहुत ज़्यादा है देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 1 एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज 2। तो इसका मतलब है कि दोनों ही जो स्पीशीज हैं स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 ये एक दूसरे को इतना कंपटीशन नहीं दे रहे, दोनों की जो ग्रोथ है ये नॉर्मल ही हो रही है। तो मीन्स ये स्टेबल कोएग्जिस्टेंस में होंगे, इनमें कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, कोई भी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नहीं है, तो अगर कंपटीशन नहीं होगा तो दोनों की ग्रोथ आराम से होगी। सो दिस डिपिक्ट द बोथ स्पीशीज दे हैव लोअर द कैरिंग कैपेसिटी देन अदर स्पीशीज डिवाइडेड बाय द कॉम्पिटिटिव कोफिशिएंट। अब तीसरा सिनेरियो शो करता है अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस, मीन्स दोनों साथ रह रहे हैं लेकिन दोनों अनस्टेबल हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ग्राफ इस तरीके से है, यहाँ पे जो है स्पीशीज 1 का ग्राफ है और यहाँ पे स्पीशीज 2 का ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आइसोक्लाइन है दोनों के ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इक्वेशन को देखें तो जो K2 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है देन दिस, और जो यहाँ पे K1 है इट इज ग्रेटर देन दिस इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करें तो यहाँ पे क्या पता चलता है, जो स्पीशीज 2 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका जो इफेक्ट है स्पीशीज 1 के ऊपर ये भी बहुत ज़्यादा है देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 1। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन शो करती है कि जो स्पीशीज 1 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है प्लस इसका स्पीशीज 2 के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 2। तो ये इक्वेशन हमें शो करती है कि यहाँ पे जो स्पीशीज 2 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी और इसका 1 के ऊपर इफेक्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा है, और जो स्पीशीज 1 है इसकी भी जो कैरिंग कैपेसिटी है और इसका 2 के ऊपर जो इफेक्ट है इसकी ग्रोथ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा है। तो मीन्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ स्पीशीज दे शो ग्रेट competitive effect on each other, so that's why there is great interspecific competition between species 1 and 2 and this leads to the unstable coexistence, means दोनों जो है exist करेंगे, कोई भी exclude out नहीं होगा, but this is very unstable coexistence. So this is all about the Lotka-Volterra model. If you have any type of query regarding this model, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.